Good afternoon, a very hot yet wonderful Sunday afternoon. It's just, what's the time? It's just 54, 6 more minutes before we really formally start the session. So I thought I'll check how it is and let's see what conspires on parenting. Parenting is an art, it's a beautiful thing, बट क्या है ना, हम सब गड़बड़ा जाते हैं. हम सबको लगता है हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ सीख चुके हैं, और हम सीखे किससे हैं, हम क्या सीख चुके हैं. We have to understand that. So we would be talking about parenting. We have some people joining, and those who have any questions on parenting, they can just inform and we will be able to take the questions. मुझे इसमें लोगों को ऐड करना नहीं आता है, हम लोग सब टेक्नोलॉजिकली सेवी बन रहे हैं. सो आई लर्न कि मैं इसमें अपने लाइव सेशन में नेक्स्ट बार से किसी और आई कैन सी अ बटन विच सेज ऐड. So anybody who wants to have a valid discussion, who has a valid question, I'll be able to add them onto my live session. So आप में से कोई लोग भी जो अभी ऐड हो रहे हैं, जो लाइव आ रहे हैं, if you have any question, please send it to me. I'll read the question and after reading the question, I'll try adding you to our session and have a discussion with you. So we are going to be talking about parenting. Can I write somewhere about parenting? No, I think in the live session you can't write parenting. So what is parenting all about? We need to understand. We all are learning. We all don't know how it works. Yes, you want something? No, you don't want something. Okay, that's my daughter at the back. She keeps getting, into the mode where she thinks I'm being a little rough. And yes, we as a parent tend to be rough. We tend to be very sweet. We tend to be questioning. We tend to be answering. We tend to be a friend. So what exactly is parenting is a big tough challenge for a lot of parents. Parents of newly borns, parents of tweens, parents of teens. Parenting is a beautiful yet a very difficult journey because we never learnt it. We never learnt it formally. हम लोग इंजीनियर बनते हैं, हम लोग डॉक्टर बनते हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं. Whatever we do, हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं. मगर पेरेंटिंग के लिए yes, I have somebody writing over here saying parenting is an art. I believe with you. And what's the name? It says Dheeraj. Dheeraj is the name of this person. Says you have to deal every child with a different idea. I completely agree with you, Dheeraj. Every child is different. Every parent is different. Every parenting style is different. I'll be discussing 3 major parenting styles, which normally, let me just put them into my 3 major parenting style which have been discussed world over. And आपको ये देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म करते हैं. Okay, so you have to understand what kind of a parent you are. और अगर आपको ये पता चल जाए कि आप किस तरह के पेरेंट हैं और आपके क्या क्या एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, या और यू आर श्योर दैट व्हाट यू डूइंग इज़ एब्सोल्युटली ओके. बिकॉज पेरेंटिंग की कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रोफेशनल आर्ट नहीं है. ये हमने किससे सीखा? फ्रॉम whom did we learn? We learned from our own parents or our own friends or our grandparents. हम किन लोगों से सीख रहे हैं? जो हमारे आसपास पहले पेरेंट्स बन चुके हैं. हम उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को लेकर के अपने एक्सपीरियंसेस को साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं. और जब हम ये करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद का दिमाग, अपने खुद की स्किल्स को भी यूज़ करते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि हाफ द वे कहीं पर हम एज अ पेरेंट खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है. एंड दैट्स वेयर वी थिंक कहीं से थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल जाए, कहीं से थोड़ा सा कुछ
we get some material, some ideas, some solutions. So that is what we are going to be doing today. Let me just see the time again, and it's 59, almost touching the clock at 12 o'clock. 12 बजे संडे को ऑनलाइन आना इंस्टाग्राम के ऊपर और एक पेरेंटिंग वर्कशॉप में ऐड होना is a task. It is not easy. I understand that. But we'll be recording this session for a lot of people, so those who want to come back and view it, they can. But right now, our major thing is that we want to have the queries, the questions. And if you have some, I would be able to take you on with me live in my session and discuss with you. Otherwise, I have a lot of things which I want to talk on to help the parents of newlyborns, of tweens and teens, because we all are learning all the time, and when we are learning, we take help. We take help from our own parents, we take help from our friends, our grandparents. So एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है पेरेंटिंग की. अगर हम पेरेंट बनते हैं तो हमें कोई भी घोट के कोई रेसिपी नहीं मिली है कि भैया ऐसा पेरेंट बन जाओ, ऐसे ऐसे कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा. As Dheeraj said, every parent is different, every child is different, every parenting art is different. And in the world, there are 3 major parenting, skills or the styles which have been discussed. I think it's about time I start talking about them. Let me formally welcome all of you who are here and those who are not here, who may get benefited later with this discussion which we are having. So parenting is an art we never learnt, and we have to learn on the journey itself. Parenting can be frustrating, it can be enjoyable, it can be a beautiful journey, it can be a bumpy ride, and it all depends on how we take it as a parent. एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ. मेरी बेटी, my children are small, they are 9 years. So my daughter, believe me, today's children are very smart. So you really need to observe what they're saying, and they teach you. As William Wordsworth said, each child has something to teach, and in his lines, child is the father of man. And as my daughter keeps correcting, child is a father of a man and a woman also. So we would say child is a person who teaches the people around, चाहे वो parents हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो. So parenting is learned while you are onto your journey. आप अपनी जर्नी करते हुए पेरेंटिंग को सीखते हैं. As a parent you learn. कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है. तो मेरी डॉटर मुझे सिखाती है. वो क्या सिखाती है? जब हम कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं बड़ी शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे हम कभी भी कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं. वो जो वैल्यू बोलते हैं, जो पैसा बोलते हैं, हम वही देते हैं और आ जाते हैं. मगर जब हम सब्जी वाले से, भाजी वाले से, या कहीं कुछ पटरी पे कुछ खरीदते हैं, या कुछ छोटी दुकान में कुछ खरीदते हैं, तो हम बार्गेनिंग करते हैं. क्यों? And she has a very valid point. So on the way she is teaching me कि बार्गेनिंग करनी है तो बड़ी दुकान में करो. Are you learning from your children? ये बता के मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या आप अपने बच्चों से सीख रहे हैं? Believe me, आप अपने बच्चों से सीखते हैं. बड़ों से तो सीखते हैं जो आपके आसपास हैं, जो पेरेंट्स हैं, मगर आप अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं. तो अपनी आंखें खुली रखिए, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करिए, उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करिए, उनकी बातों को ऑब्जर्व करिए और उनको टाइम दीजिए. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन. अगर आप अपने बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, अगर आप अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिनसे आपको ये लगता है कि आपने उनको कुछ देर के लिए बिजी कर दिया और आपको टाइम मिल गया, believe me time is important. Your time is very important. You need your own quality time for yourself. But जो बच्चे आपने पैदा किए हैं, जिनको आप इस दुनिया में लाए हैं, आपने उनको ज़िंदगी दी है, उनका टाइम
उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है. And when they say they want your love, when they show you tantrums, when they try to come around you, hug you, when you're very busy, when you're with a lot of people, that's the time when they're trying to tell you, I need your time. और वही टाइम है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बिकॉज वी थिंक वी आर वेरी बिजी with a lot of work. We are doing something which is very important in the world. But believe me, your children are the most important assets. Your value, your life. और बच्चे वही करते हैं जो अपने बड़ों से सीखते हैं. Children are the ox. आपका खुद का मिरर इमेज है आपके बच्चे. आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी पिच, आप जिस पिच में बात करते हैं, आप जिस टोन में बात करते हैं, आप जिस वर्ड्स में बात करते हैं, your children repeat them back on you. And that's what is parenting. That's what the first lesson is. Be what you want your children to be. Be and do what you want your children to follow. Your children to follow, good habits, show them that. If you want your children to speak softly, speak softly to them. You want your children to be friendly and open, be friendly and open. हम लोग कुछ भी सीख के नहीं आए थे. जब हम इस दुनिया में आए थे, हमने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा, और हमने एक जो चीज़ सीखी वो थी नेगेटिविटी ऑफ थॉट प्रोसेस. हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम चीज़ों को बहुत नेगेटिव तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उसमें, क्योंकि हमारा समाज जो है, हमारा सराउंडिंग्स जो है, वो हमें नेगेटिव होने पे मजबूर कर देता है. बट बिलीव मी, दैट्स वेयर इज़ द चैलेंज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ अ पेरेंट. एज अ पेरेंट, जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप अपने बच्चों की नेगेटिव्स को हाईलाइट करते हैं, तो आप खुद गलत हो जाते हैं और आप अपने बच्चों को एक गलत राह पे डालने की कोशिश करते हैं एज अ पेरेंट्स. एक छोटा सा सिचुएशन है. आजकल पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों को ये मोबाइल फ़ोन और ये टैब की इतनी आदत पड़ गई है कि उसके बिना कुछ करते ही नहीं. दिल पे हाथ रखिए, दिमाग से सोचिए, उनको वो टैब, उनको वो फ़ोन दिया किसने था? 2 साल बच्चे घर पे थे, पढ़ाई कर रहे थे डिजिटल मीडिया के ऊपर. हम समझ सकते हैं कि आपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए दिया, मगर पढ़ने के बाद. सो पेरेंट्स, प्लीज सी एंड ऑब्जर्व एंड एक्सेप्ट द बिटर ट्रूथ कि बच्चे जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, मेजरली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. यू एज अ पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल. तो आपके फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं आपके बच्चे. आप जो करेंगे वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे. आप प्यार से बात करेंगे, वो प्यार से बात करेंगे. आप क्वेश्चन करेंगे, वो भी क्वेश्चन करेंगे. अब वो क्वेश्चन करेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते हैं, तुम्हें किसने अधिकार दिया हमसे सवाल करने का? हम कौन हैं? वी आर द पेरेंट्स. इफ वी कैन क्वेश्चन, they can question, because we are two human souls talking to each other. I have a question coming here. Okay. But we never got it. I'm sorry, I have one thing here. What is it? One person took a, what is a cycle from down? हाँ, नीचे का एक साइकिल ले गया. किसका? पता नहीं. 2 साइकिल थे ना, तो फिर नीचे को. That's okay. Let's just stop. Okay. So the guard is missing today. My daughter has to tell me, and I cannot ignore my daughter. Can I? Even if I'm in a live session, if my daughter has something to say, I have to listen to her. There are some people I can wave to them, or no, I don't know. I can read their names. Hi everybody. I'm sorry, I'm just discussing. So if you have any questions, please put them down, because I don't see any questions yet. But I have a lot to tell. As Dheeraj said, that every child is different and have with a different idea. Parenting is an art, and parenting is an art which you learn on the journey. कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई डिप्लोमा, कुछ भी नहीं है हमारे पास.
हमें उसको सीखने के लिए अपनी जर्नी के ऊपर अपने बच्चों को हमारे साथ खड़ा करना पड़ेगा। हम बॉस नहीं हो सकते हैं। आपका बॉस जब आपके ऊपर डिक्टेट करता है, आपको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर आपको कोई ऐसे कहे तो आपको कैसा लगता है? I understand as a parent we have situations where we have to tell our child what I'm saying you have to do that, but when we do that we must reason that out with our kids, we must tell them ताकि वो उनके दिमाग में चला जाए। They may not be able to process it, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट हमें पता है उस सिचुएशन पे जो हम उनको कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और उन्हें वो करना चाहिए बिकॉज इट इज़ गुड फॉर देम। बट जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, मेक श्योर दैट व्हेन यू आर टेलिंग योर चिल्ड्रन कि ये बहुत ज़रूरी है और आप उसको रीज़न कर रहे हैं, उनको रीजनिंग दे रहे हैं, खुद से पहले एक विश्वास डाल दीजिए दैट व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर टेलिंग देम इज एक्चुअली राइट and you have no iota of doubt। क्योंकि अगर आपके दिमाग में डाउट आ गया ना कि मैं अपने बच्चे को जो कह रहा हूँ करने के लिए या कह रही हूँ करने के लिए उसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। एज अ पेरेंट, इफ यू आर क्लियर what you want your child to do, please tell them to do that and reason it out with them, give them a reason, and sometimes they may not end up listening to you and you will have to be a little authoritative। वर्ल्ड में 3 तरह के पेरेंटिंग स्किल्स या पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात होती है। वन इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव, सेकेंड इज कॉल्ड परमिसिव, थर्ड इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन। अब आपको ये समझना है कि आप अथॉरिटेटिव हैं, अथॉरिटेरियन हैं या परमिसिव हैं, क्योंकि एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुल के अपने पेरेंट्स से कुछ बात कर सके। अगर बच्चों को ये लगे कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे और पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनको उस बात के लिए स्कोल्ड करेंगे, तो बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बच्चे डरना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि जब कुछ टीनेजर्स के पेरेंट्स से बात होती है तो बोलते हैं हमारा बच्चा हमसे अब बात नहीं करता है, आवर चाइल्ड हैज स्टॉप्ड टॉकिंग टू अस, a child doesn't really open up to us, the child gets irritated when we discuss things with them। You know, when as a parent, बचपन में ये जो पेरेंटिंग है ना, ये टीनेज में नहीं शुरू होती है, ये ट्वींस में शुरू नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है, आपकी अटैचमेंट कैसी है? हमारा एक अटैचमेंट थ्योरी है जॉन बॉल्बी का, विच साइकोएनालिसिस से आती है। सिगमंड फ्रॉइड का नाम सबने सुना है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुन के सब लोगों को पता है अनकॉन्शियस की बात होती है, सबकॉन्शियस की बात होती है, और कॉन्शियस की बात होती है। तो हमारे दिमाग में कॉन्शियस जो है वो बहुत कम है, जो अनकॉन्शियस है या सबकॉन्शियस है वो बहुत ज़्यादा है। अंदर हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, देयर इज़ अ लॉट विच इज़ राइट इनसाइड आवर हेड। सो एज अ पेरेंट, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, आपकी अटैचमेंट बच्चे के साथ कैसी रही, आपने अपने बच्चे को किस तरह का अटैचमेंट मॉड्यूल दिया। अब अटैचमेंट के ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन अटैचमेंट कि आपकी अटैचमेंट कैसी रही, वो बच्चे के 8-9 साल के बच्चे के बिहेवियर से पता चल जाता है। सो देयर इज़ अ प्ले थेरेपी विच गेट्स इन्वॉल्व टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अटैचमेंट अ चाइल्ड हैज़ विद द पेरेंट। So we'll be talking of attachment theory if anybody wants to know, but not now. Let's come back to it कि जब आप एक पेरेंट बनते हैं वहीं से आपका पेरेंटिंग स्टाइल शुरू हो जाता है, जो आप खुद सीखते हैं लोगों को ऑब्जर्व करके और अपना सब उसमें मसाला डाल के। सो जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद पेरेंट का एटीट्यूड कैसा रहा? क्या पेरेंट ओपन था? क्या पेरेंट्स ने अपने बच्चे को एक ओपन एनवायरनमेंट दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया, टॉकिंग स्किल्स दिया, क्वेश्चनिंग स्किल्स दिया, टोनल क्वालिटी क्या दिया? ऑल दीज मैटर, क्योंकि एक आपका बच्चा आपका खुद का अक्स है, विच मीन्स योर चाइल्ड इज योर ओन मिरर इमेज। अगर आप अपने बच्चे को मीठा बोलते हैं, योर चाइल्ड विल बी स्पीकिंग स्वीटली टू यू। इफ यू टॉक सॉफ्टली टू योर चाइल्ड, द चाइल्ड वुड बी टॉकिंग सॉफ्टली टू यू।
बच्चे गलत नहीं होते हैं, पेरेंटिंग गड़बड़ा जाती है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स, इतना प्रेशर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मगर उन सब चीज़ों के बीच में वी हैव टू रिमेंबर दैट एज अ पेरेंट आवर ड्यूटी इज़ प्राइम एंड सुप्रीम। अगर हम इस दुनिया में एक लाइफ को लेकर के आए हैं, हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उस बच्चे का वेलफेयर, साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसका मेंटल वेलबींग, उसका फिजिकल वेलबींग का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी बच्चे को कुछ होता है, गला खराब हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, कुछ एलर्जी हो गया, वी रश टू द डॉक्टर। बट विथ फिजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए घर का माहौल कैसा है, बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, द बॉन्डिंग ऑफ पेरेंट्स कैसी है, क्या एक अच्छा परिवार में बच्चे को एक अच्छे तरीके से एक दोस्ताना, a friendly environment is given, or the parents are all the time fighting, and there is something which is happening between the parents and the parents are not, and the child is watching कि हो क्या रहा है, मेरे माँ बाप क्यों लड़ रहे हैं, and अगर लड़ भी रहे, होती है भाई लड़ाई पेरेंट्स में, if the parents are fighting, the child should be given the reason or the authority to stop the fight. Believe me, it works wonders. अगर एक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे दिया जाए और उसको ये समझा दिया जाए कि भाई अगर मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है और ये काम माँ और बाप का ही होता है, तो बच्चे को हक है बीच में बोलने का, पापा आप प्लीज़, आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मम्मा आप भी चुप हो जाइए। और अगर आप बच्चे को ये हक देते हैं, आप अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लड़ते हैं, ईगोज़ में लड़ते हैं। हमारी ईगोज़ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जब एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं पूरी दुनिया में कि कुछ और भी है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेरेंट्स को तो मालूम है कि आप लोग भी पेरेंट्स बन गए हैं, मगर बच्चों को मालूम नहीं है कि आपका झगड़ा क्यों हो रहा है। तो अगर आप अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देते हैं that they can stop your fight while you're fighting, believe me, it will work wonders on your psychological well-being and on the psychological well-being of your child. एक बच्चा क्या है? आपका मिरर इमेज। आप जो करेंगे आपका बच्चा वही करेगा। आप चिल्ला के बात करेंगे, आपका बच्चा चिल्ला के बात करेगा। ये जिंदगी एक ही बार मिली है मेरे दोस्त, पेरेंट एक ही बार बने हो। हाँ, 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, मगर जब पेरेंटिंग है पहले बच्चे से ही शुरू हो जाती है। सो इफ यू बिकम अ पेरेंट हु इज कंसर्न्ड अबाउट द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल वेलबींग, जब आपके बच्चे टीनेजर्स बनेंगे, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा बच्चा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई माई डॉटर इज स्टॉप टॉकिंग टू मी, वाई माई सन इज नॉट शेयरिंग थिंग्स विद मी। आजकल के पेरेंट्स दे आर रेडी टू लर्न, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट ऑल ऑफ अस। हम लोग सीखना चाहते हैं और हम कहीं से भी सीखना चाहते हैं। एनी इंफॉर्मेशन इज गुड फॉर अस एंड वी वुड लव टू चेंज फॉर बेटर। एंड द फर्स्ट चेंज इज you have to start observing your own parenting style. You have to observe कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा किस तरह से behave करते हैं, how you behave, how you talk to them and how they react. आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, that your child is the mirror image of who you are as a parent. So मैं बात कर रही थी, there are 3 kinds of parenting styles: authoritarian, authoritative and permissive. अब permissive parent कौन है? मम्मी चॉकलेट खा लूँ? हाँ बेटा खा ले। पापा टीवी देख लूँ? हाँ बेटा देख ले। पापा पढ़ाई नहीं करनी? ओ रहने दे यार, आज पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मम्मा आई डोंट वांट टू टेक माई टेस्ट। हाँ कोई नहीं, छुट्टी कर ले। मम्मी मेरी मैम ना बहुत खराब है, अच्छे से नहीं पढ़ाती है। हाँ तेरी मैम तो बहुत खराब है, उनको तो पढ़ाना ही नहीं आता। Who is this parent? Who is this parent? Can somebody reply? I think there is some question here. Okay, there are 1 or 2 requests. What are the requests? I don't know. Okay. Black 3586
560। आप पहले अपना क्वेश्चन बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है बिफोर आई गो लाइव विद यू। आपका क्वेश्चन क्या है आप मुझे बताएंगे, और उसके बाद हसन आप मुझे बताएंगे आपका क्वेश्चन क्या है। आप प्लीज लिखिए ताकि मैं आपके साथ लाइव जा सकूं। 2 लोग हैं, ब्लैक और हसन। प्लीज राइट योर क्वेश्चन डाउन। अगर आपको मेरे साथ लाइव आना है, मुझे पता तो हो आपका सवाल क्या है। Whatever question you have, please write it down so that I can go live with you. It will help me in understanding कि आपको actually क्या question पूछना है। Hassan and Black, if you have a question, are you still here? Let me just check again. Yes, it's Hassan and Black. I don't know if it is a parent or who. I can take people live on session with me, as I said in the beginning. If you have a valid question, अगर आपके पास as a parent कोई सवाल है, as a parent आपका कोई सवाल है, प्लीज उसको यहाँ पे लिखिए और मुझे लाइव रिक्वेस्ट भेजिए। I'll take you live with me. I'm ready to take you live with me if you have a valid question. So please अपना question यहाँ पे लिखिए कि as a parent what is it that you're facing, what is it that you want to ask. अगर आप लाइव आना चाहते हैं, अगर लाइव नहीं आना चाहते तो आप अपना क्वेश्चन वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं अभी, यू वांट मी टू टेक यू ऑन विद मी, प्लीज राइट योर क्वेश्चन एंड वंस आई गेट, आई डोंट थिंक आई हैव अ क्वेश्चन हियर, no questions yet. So if you have a question, please write it down here and then send me a live request. I'll take you online with me. If you want to come online, send your question and I'll take you online with me. Let's go back to the parenting styles. हम बात कर रहे थे permissive parent की। permissive parent कौन है? हर बात के लिए हाँ है। मम्मी ये कर लूं, कर लो। पापा ये कर लूं, कर लो। पापा खाना नहीं खाना, मत खाओ। पापा पढ़ना नहीं है, मत खाओ। पापा टीवी सारा दिन देखना, देख लो। Who is this parent? Permissive parent। हर चीज के लिए हाँ है। क्या आप में से कोई परमिसिव पेरेंट है? Do you think you fall under the category of permissive parent? You need to change a little for better. हर चीज के लिए हाँ कर देना भी अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त। So, if you are a permissive parent, let's change that style of parenting a little. हर चीज के लिए हाँ कर देना भी। I have a lot of examples of children जिन लोगों के पेरेंट्स ने उनकी हर बात पे हाँ किया एंड नाउ द पेरेंट्स रिग्रेट इट, क्योंकि आप अपने बच्चे को हर बात के लिए हाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, हसन सेज माय सन्स आर नॉट कोऑपरेटेड, आई वांट टू टॉक यू लाइव। हसन आपके बच्चों की उम्र लिखिए, हाउ ओल्ड आर दे and what are the major, they are not cooperative. अब cooperative has a lot of meaning. उसमें हमें ये जानना होगा कि आपका parenting style क्या रहा है। आपके कितने बेटे हैं हसन? You'll have to tell us that. Hassan is saying my sons are not cooperative. Now ये बहुत ही general statement है, क्योंकि बच्चे cooperative नहीं होते हैं। उसमें parenting style कहाँ पर गड़बड़ाया और उसमें क्या क्या issues हुए। There are lots of things which we need to understand. Hassan, you need to please tell us your age, how long you have been married, आपके कितने बच्चे हैं और क्या major cooperative is एक बहुत ही wide term है। क्या आप हमेशा अपने बच्चों के साथ कोऑपरेटिव रहे हैं? मैं आपसे ये पूछूंगी। तो जब आप बोलते हैं माय चिल्ड्रन और माय सन्स आर नॉट कोऑपरेटिव, हियर इज माय सन कमिंग इन। हाय, से हाय वीर। हेलो। हाय। हेलो। लाउडर, कैन एवरीबॉडी? हेलो एवरीबॉडी, वीर इज सेइंग कैन एवरीबॉडी हियर वीर? क्या सबको वीर का आवाज आ रहा है? कोई जवाब देगा, yes or no? Okay, Veer, I'm talking to everybody about parenting. Okay? Yeah. Now, I gave you some work to do. Did you finish? Little is left. Little is left. Please go complete it. Mama, No. you remember we had made, you and I had... Yes, now, okay. Right now, I'm online with a lot of people. Please go do your work, come back. Okay? I request you. Okay? Please, thank you. I love you also. Okay, so my son has gone to do his work. Hopefully he'll finish. Children this age are a little
what do I say, they have their own बच्चों का फ्रंटल लोब जो है वो डेवलप नहीं होता है जब तक वो टीनेज के बाद फ्रंटल लोब पूरा डेवलप होता है, वो प्रोसेस है पूरा। तो रैशनल थिंकिंग नहीं होती है बच्चों की, और हम जब बच्चों के साथ रैशनलाइज कर रहे होते हैं ना कि तुम ये ऐसे करो, ये करो, हम उनको अगर हम समझा के करेंगे ना शायद उन्हें ज़्यादा अच्छा समझ आए। अगर हम उनको धमका के करेंगे तो वो रैशनलाइजिंग समझ। लाइव अगेन, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट कनेक्शन। जिंदगी में रिलेशनशिप्स का हो, नेटवर्क का हो, लूज करके उसको वापस जोड़ना हमारे हाथ में है, और कई बार नेटवर्क कंपनीज के हाथ में होता है। तो हम जब बात करते हैं पेरेंटिंग की, परमिसिव पेरेंट की, तो हम बात करते हैं एक पेरेंट की जो हर चीज़ के ऊपर हाँ बोल देते हैं, एंड दैट स्टाइल इज ऑल्सो नॉट गुड। और बच्चे को ये लगता है अब तो मैं इनको आराम से ब्लैकमेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जिंदगी के अंदर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी है। नथिंग कैन हैपन इन एक्सेस, एनीथिंग विच वी डू। 1 minute. Hassan had a question, but still he has not come back with a valid, this thing to me. So I would not be able to take you online, Hassan. And Black, I think Black also has not come back with a valid question to me. So हम बात कर रहे हैं permissive parent की, जो कि हर चीज़ के लिए हाँ कर देता है। And a permissive parent is not what you should become. And if you are a permissive parent, please think back, please see कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, किस तरह से उसको ठीक करना है। और एक जो बहुत ही important therapy है, that is called chat therapy or talk therapy. So you have to talk to your children. Believe me, that's one rule which you have to follow. Talk to them. So you have to talk to your children, you have to understand what they want, how they want to be talked to, and as a parent you have to take lead ताकि आपके बच्चों को बात करने की आदत पड़े। A lot of parents I have met, because they feel that they can't communicate themselves with the children lose that communication cord, और इसी करके जैसे वो टीनेजर बनते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते हैं। तो एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे कि उनको बात कैसे करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियली टॉक टू योर चिल्ड्रन, एंड वंस यू टॉक टू योर चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, इज इट नेगेटिव, इज इट पॉजिटिव, डू दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, डू दे रियली नो वेयर दे वांट टू बी। और एक डिक्टेट मत करिए अपने बच्चों को। डिक्टेशन ऑफ एनी काइंड इज बैड। बी अ पेरेंट हु वांट्स टू be a friend with the child, but a friend who knows the limits, because if you know how to talk with your child, the child will also learn. If you know how to talk confidently, the child will also learn. आपका खुद का अक्स, आपका खुद का मिरर इमेज है आपका बच्चा। So you need to understand how to talk to your child. Very important. Are you a permissive parent, authoritative parent, or an authoritarian parent? Please find about that, and I'll be calling it off if nobody else has any questions in another 5 minutes. अगर किसी का कोई सवाल है, वैलिड सवाल है, तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए। I don't know, Hassan, I cannot call you live because I don't know what is your let me just see what is your profile, what children you have, how old are you, what is it that they are not cooperating, until unless I understand, how many children do you have, Hassan, and how old are they? Please write. How many children do you have? Hi everybody who's here. If you have a question, please write your question. Whether you want to send it personally or you want to write it here, that is your choice. अपना question लिखिए as a parent. If you are facing any issues or if you have some nice nice thing to share about being a parent, please write it here or send it to me in person. I'll be able to read it.
you know, and if you want to please, no, but why, what life question you have, Hassan? Please write. How, just tell me, how old are your children? How old are your children, Hassan? I can't see that. If I don't know how, you know, how old are your children, how would I be able to understand? You are, you know, if a parent writes, my children don't cooperate, what does that mean? That means the parent has taught it to the child somewhere. अगर एक बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, then there is something which has gone wrong. I had a question from Richa. बच्चे जल्दी टायर्ड हो जाते हैं एंड चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट? इज दैट द क्वेश्चन, रिचा मैम? कैन यू टेल मी कि कैसे डील करें? हम कैसे डील करें? क्या आपने अपने बिहेवियर को टेस्ट किया रिचा कभी? क्या आप कभी चिड़चिड़े हो जाते हो? कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हो रिचा? Have your children seen you getting upset? Have your children seen you getting upset, Richa? Yes or no? Yes or no, Richa? Because हमारे बच्चे बहुत सी चीज़ें हमसे ही सीखते हैं. मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं अपने बच्चों को चिड़चिड़ा के कभी जवाब देती हूँ, तो जब मैं उनसे कोई जवाब मांगती हूँ तो वो भी चिड़चिड़ाते हैं. तो मैंने एक रूल बना लिया रिचा. आई एम टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग यू दिस रूल विद यू. जब आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं. सो प्लीज स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर कॉन्शियसली रिचा, कि आप कहाँ पे चिड़चिड़ापन दिखाते हो सकता है आप भी फ्रस्ट्रेट हो के उन्हें चिड़चिड़ापन दिखाते हो. तो एक अपनी एक हैबिट बना लो कि जब आप चिड़चिड़ करते हो, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या चिड़चिड़ाते हो, तो उस मोमेंट पे आप अपने बच्चे की तरफ मुड़ के देखो और उसे ये कहो कि मैं सॉरी हूँ, आई एम सॉरी दैट आई बिहेव्ड इन अ मैनर विच इज़ वेरी ऑड एंड बैड. सो बच्चा, मुझे प्लीज़ माफ़ करना, मैं कभी कभी ऐसा चिड़चिड़ा जाती हूँ और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. सी, ट्राई डूइंग दिस एंड कम बैक एंड टेल मी इफ इट चेंज्ड. ओके? यस रिचा, इज दिस हेल्पिंग? क्या आपको लगता है आप भी कभी कभी चिड़चिड़ाती हैं? हसन, हाउ ओल्ड आर यू? आपके 3 बच्चे हैं, 30 साल, 27 साल, 23 साल. आपकी खुद की उम्र क्या है हसन? रिचा, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर बच्चे चिड़चिड़ाते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो हमसे ही सीख रहे हैं चिड़चिड़ाना. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका चिड़चिड़ापन आ कहाँ से रहा है, क्यों कहाँ आ रहा है. और जब वो चिड़चिड़ाते हैं, या तो उस टाइम पे हम उनको छोड़ दें और उनका कोई ऐसा चीज़ उनसे ले ले जिससे उनको बहुत प्यार हो और उस चिड़चिड़ेपन में वो उसको यूज़ करना चाहते हैं. देखो, चिड़चिड़ापन बहुत तरह का होता है. इफ़ अ चाइल्ड इज़ गेटिंग चिड़चिड़ा, देयर हैज़ टू बी मैनी रीजंस, राइट? वो चिड़चिड़ाहट पढ़ाई के लिए है, वो चिड़चिड़ाहट खाने के लिए है, वो चिड़चिड़ाहट टीवी देखने के लिए है, वो चिड़चिड़ाहट किसी को मिलने के लिए है. सो चिड़चिड़ाहट कैन बी ऑफ मैनी टाइम्स. यू नो दैट इरिटेशन ऑल्सो हैज़ मैनी रीजंस. और सीखते वो हमसे ही हैं. तो आपको उनको एक शब्द सॉरी कहना सीखना पड़ेगा जब आप चिड़चिड़ाएं. और आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके बच्चे कौन कौन से मोमेंट्स में, कौन कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशंस में दे फील इरिटेटेड, क्यों और कैसे. आई थैंक यू रिचा, आई होप दैट हेल्प. यू कैन ऑलवेज कम बैक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एंड इफ दिस हेल्प्ड, प्लीज वापस आके बताना कि ये हेल्प किया. बिकॉज पेरेंटिंग अपने आप में एक आर्ट है. कहीं पे भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिलती है. हम ऑन द वे सीखते हैं. वी कीप लर्निंग एज वी बिकम अ पेरेंट. एज द चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड, वी स्टार्ट लर्निंग, वी स्टार्ट बिकमिंग बेटर, एंड वी आर, एंड यू नो, आजकल के पेरेंट्स आर मच बेटर. दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम एनीबडी हु कैन टीच. तो हमें सीखना छोड़ना नहीं चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए. Okay, I have, I think, a question, and there are 2. Okay, 62 years, please call me live. Hassan says he's 6. Okay, Hassan, did you always cooperate with your children? क्या आपने अपने बच्चों से हमेशा कोऑपरेट किया था?
Hassan, did you always cooperate with your children? आपके तीनों लड़के हैं हसन? Are your all three children kids? They are sons and they are all working. आपके तीनों बेटे हैं क्या? All three. आपके प्रोफाइल के ऊपर एक दिल दिख रहा है. I can't go to your profile right now. Okay, Hassan, let me take you online. Hassan, I have taken you online. Are you there? No, Hassan is not there. I think उसका network connection का कुछ problem गया. Thank you, Richa. Because parenting सीखनी पड़ती है. ये कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, कहीं पर भी हम सीख लें कि भैया ऐसे ही करना है. Each parenting style is different. Each parent is different. Each child is different. हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं. वर्ल्ड में मेजरली 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात होती है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव. आप कौन सी कैटेगरी में है? यू विल हैव टू फाइंड दैट आउट फॉर यू. आई कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग दैट आउट. And I think it's about time. We have gone 45 minutes. I think there are not any more questions, and I think I have a lot more to speak. So we are going to organize a parenting workshop soon. Anybody who wants to join can join the link, and we would be doing a 2 hours session, and then we would be doing a session which will be weekly session with the parents, because parenting जो है मैं आपको 2 घंटे में डिस्कस करके खत्म कर दूं, होगा नहीं. होगा कैसे कि हम लोग 1-2 घंटे का सेशन करें और 1 महीने के लिए हफ्ते में सिर्फ 1 बार ऑनलाइन मिले. सो एंड देन वी डिस्कस दैट हाउ द चेंजेस आर हैपनिंग. सो हमारा पेरेंटिंग वर्कशॉप कुछ इस तरह का होगा. दोज हु वांट टू जॉइन, प्लीज कम बैक. एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. इट वाज लवली हैविंग यू ऑल ऑन संडे आफ्टरनून. छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पे हैं, और उसके बावजूद भी आप यहाँ पर हैं. थैंक यू वेरी मच. Try to be a good parent. Try to be a parent who knows कि आपका बच्चा आपका खुद का अक्स है, आपकी मिरर इमेज है. Have a great day. Keep rocking and keep talking. तो यहाँ पर हम थे कुछ दिल की बात करते हुए, कुछ दिल से. Thank you.